Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum grade 6. I am Atika Jamil, your maths teacher. I teach you mathematics in grade 6. Now I start with chapter 1, which is sets. First of all, I describe you what is set. Set is a well-defined and distinct objects. वेल डिफाइनिंग जो हम एक प्रॉपर अच्छे तरीके से उसको डिफाइन कर सकें चीज़ को, एंड डिस्टिंक्ट में जो सेम ना हो, डिफरेंट हो, लाइक डेज ऑफ वीक्स, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. 7 days of weeks, it is well defined, and every day is distinct from each other. Monday is different from Tuesday is distinct from Wednesday. So it is distinct object. Days of weeks is a set, and like set of natural numbers. Natural numbers start with natural number denote with capital N, and natural numbers start with 1, 2, 3 up to so on. We denote set with the bracket called curly bracket. This is the set of natural numbers. Like other sets, set of vowels, we denote with V, capital V. Enclosed with the braces this, write vowels A, E, I, O, U. This is a set. This is well defined and distinct object. There is no number same each other. In set there is no repetition. In set there is no repetition. Like if set A 1, 1, 2, it is not a set. It is not a set because here repetition 1, 1 same, and we discussed that sets which have distinct object not same. So this is same number. So it is not a set. So A is not a set. Okay, clear it? Set is the well defined and distinct object. Okay, now I tell you about element of a set. Element of a set is each object in the set is the element of the set. Like 1 is the element of set N, 2 is the element of set N, 3 is the element of set N. मतलब एक सेट में जो भी चीजें जितने भी नंबर्स होंगे वो सब उस सेट से क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे या मेंबर्स होंगे. ठीक है, एलिमेंट्स और मेंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स वो अल्फाबेट्स जो उस सेट में लाई कर रहे होते हैं वो उस सेट के क्या होते हैं, एलिमेंट्स या मेंबर्स. ओके, एंड वी डिनोट दिस लाइक 1. लेट्स से दिस सेट A is belong to, this symbol is for use for belongs to. A belongs to set V. Like E belongs to set V. And here C is not here, so we write C is not belong to set V. This symbol is for belongs to, and this symbol is used for not belongs to. Okay, mean this A is the member of this set or is the element of this set. So we write this A belongs to set V. A belongs to set V. Here there is no C, so we write this C not belongs to V. मतलब C सेट का एलिमेंट नहीं है. A और E तो सेट के एलिमेंट्स हैं, but C is not a set of this set. Okay, this is symbol for belongs to,
and this is a symbol for not belongs to. Now I tell about you about empty set. empty किसे कहते हैं? खाली खाली सेट को जिसमें कोई नंबर्स ना हो. We denote empty set by this. This is called 5. This is called 5. This is called 5. We denote empty set by this symbol 5 or this. Empty खाली है ब्रैकेट ये, तो मीन ये सेट हमारे पास क्या है? एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं. दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट. ये एम्प्टी सेट नहीं है, बिकॉज इन दिस ब्रैकेट इज द वन एलिमेंट विच इज कॉल्ड 5. दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट. दिस इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें एक एलिमेंट लाई करे. सिंगलटन सेट कौन सा होता है? वो सेट होता है जिसमें एक एलिमेंट लाई करे. लेट सेट ए, नाम हमने सेट को दे दिया कैपिटल ए, और उसमें जो एलिमेंट 1 है, 1 इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट बिकॉज set A have only one element which is 1, so this is a singleton set. Or other example like set B, it also have one element A, so it is also a singleton set. Now finite set. What is finite set? Finite set वो set होता है जो एक पॉइंट पे जाके एंड हो जाए, क्लोज हो जाए. लाइक सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 10. सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 5 अप टू so on 10. ये सेट क्लोज हो रहा है एट पॉइंट 10. मतलब एक पॉइंट पे जाके ये सेट क्लोज हो रहा है, एंड हो रहा है. So this is a finite set. Other set is infinite set. Infinite set is those set which is not closed at certain point, at some point. जो बस चलता रहे, रुके ना किसी पॉइंट पे. Let we say that set of natural number. We simply say that set of natural numbers up to 4. This is infinite set. This is a set of natural number 1 to 10. So this is finite. We know that we end at point 10. But infinite set we don't know at which point we end the set. Set of natural number 1 to up to so on infinite. Finite set होते हैं जो एक पॉइंट पे जाके रुक जाए. Infinite set होते हैं जो किसी पॉइंट पे रुके ना बल्कि चलता रहे continuous. Okay, finite set, infinite set, singleton set, empty set. Now we discuss about universal set. यूनिवर्सल सेट. देखिए यूनिवर्सल सेट में आप लोग एग्जांपल दे सकती हैं. ग्रेड 6. Grade 6 is the universal set. Grade 6 is the universal set because universal set is the largest possible set of all elements. Grade 6 whole class is the universal set. Now you अब आपके क्लास में नूरजहां हाउस और दूसरा कौन सा होता है? रजिया सुल्ताना हाउस. Whole class is the universal set. And set A is the Nurjahan house. Set B is the Razia Sultana house. Okay. Universal set is the which consists of all elements. Largest possible set. Whole class is the universal set. And Razia Sultana house is A set. And Nurjahan house is the set B. Universal set we denote with capital U
and the subsets A and B are the subsets, which is Noor Jahan house and Razia Sultana house. Okay. We will talk about say the exercise 1.1. Exercise 1.1. First question is so simple. Which of the following collections are set? बस सिंपल आपने ये बताना है कि कौन सी कलेक्शन हमें गिवन है, उनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है. अब सेट का बताने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए सेट के वेल डिफाइन होना चाहिए. सेकंड क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए. सेम चीज कोई ना हो, उसमें डिस्टिंक्ट होनी चाहिए. फर्स्ट देखिए, ऑल कलर्स इन रेनबो. रेनबो में ऑल कलर्स इन रेनबो, दिस इज वेल डिफाइंड. एक मतलब हम इसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. अब रेनबो में डिफरेंट कलर्स होते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू, ठीक है. सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं. सो इट इज अ सेट. Second is consonants of English alphabets. Consonants are those alphabets which is other than vowels. वो alphabets जो vowels ना हो. Vowels के अलावा जितने भी alphabets हैं वो सारे क्या होते हैं? Consonants. अब देखिए consonant भी सारे क्या हैं? एक well defined है. और ये सारे consonants आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? Different होती हैं. Same कोई भी consonant नहीं होता आपस में. So it is also a set. समझ आया आपको? इसी तरह आपने ये सारे क्वेश्चन खुद अच्छे तरीके से समझ के करने हैं कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है. जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आपने फौरन आपने टेक्स्ट करना है, देन आई विल रिप्लाई यू इंशाल्लाह. ओके. ऑल वर्क डन ऑन योर नीट कॉपीज एंड इंशाल्लाह आई विल चेक योर कॉपीज प्रॉपर्ली. Question number 2. Which of the following statements are true? Explain your answer. अब हमने बताना है कि ये जो हमें सेट्स गिवन है इनमें से कौन से ट्रू हैं, कौन से ट्रू नहीं है. अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं इक्वल सेट क्या होता है. इक्वल सेट वो होती हैं अगर दो सेट है हमारे पास, दोनों में नंबर्स भी सेम हो, कि अगर एक सेट में 4 नंबर्स हैं दूसरे में भी 4 हो, और दोनों में जो 4 नंबर्स भी हैं वो भी सेम हो. अगर इसमें 1 2 3 4 लिया, इसमें भी 1 2 3 4 ले सकती हैं. अरेंजमेंट चेंज हो सकती है, आगे पीछे नंबर लिख सकती हैं, लेकिन दोनों में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए और एक जितने. ओके. ये होती है इक्वल सेट. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2 4 6 8 अप टू 100 2 4 6 8. हमने इस क्वेश्चन में बताना है कि ये स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है कि नहीं. अब देखिए ये हमारे पास कौन सा सेट है, ये एक पॉइंट पे एंड हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, दिस इज फाइनाइट सेट. और ये किसी पॉइंट पे एंड नहीं हो रहा, सो दिस इज इनफाइनाइट सेट. तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो ही नहीं सकती. एक फाइनाइट सेट है और एक इनफाइनाइट सेट है. सो इट इज नॉट ट्रू. इट इज नॉट ट्रू. ट्रू क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज फाइनाइट सेट एंड इट इज इनफाइनाइट सेट. पार्ट 2 is 1 3 5 7 which is equal to 7 3 5 1. अब देखिए इसमें कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4. इसमें देखिए 1 2 3 4 नंबर्स दोनों में सेम है, 4 4 है. अब देखिए जो नंबर्स हैं वो भी आपस में सेम है कि नहीं? 1 इसमें है, इसमें भी है, इसमें 3 है, इसमें भी है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है. So both are equal set. It is true. समझ आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 3. डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट. अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपने डिस्क्राइब करना है ये सेट कौन सा वाला है. अब जैसे देखिए आप देखिए बुक पे अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को सेट आपके पास गिवन है. आपने बस ये बताना है कि ये कौन सा सेट है. इस सेट को हम कहते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. अब देखिए ए सेट हमारे पास गिवन है 0 2 4 6 8. अब देखिए जो नंबर्स 2 पे डिवाइड होते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स. Those number which is divisible by 2 is called even number. So this
number is divisible by 2. So it is a set of even number. Those number which is divisible by 2 is called even number. So it is a set of even number. Set B is 1, 3, 5, 7, 9. Those number which is not divisible by 2 is called odd number. Those number which is not divisible by 2 is called odd numbers. These numbers are not divisible by 2, so it is set of odd number. See X है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. Those numbers which factors only 1 and its own table are called prime numbers. Those number which factor only 1 and its own table, then we said this is a prime number. Here 2 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 पे डिविजिबल होता है, 1 पे डिवाइड हो जाता है 2 और 2 अपने टेबल पे होते हैं. 3 1 पे होता है और 3 पे होता है. 5 किस पे होता है? 1 पे होता है, 5 पे होता है. 7 किस पे होता है? 1 पे होता है, 7. सब नंबर्स के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 2, 1 and its own table. So these numbers are called prime numbers. So it is a set of prime number. Prime numbers are those number which factor have only 1 and its own table. Question 4. Why is Mercury, Venus up to Sol? This is the planets of solar system. Planets of solar system. Next 5th is potato, carrot, radish, beet, sweet potato. This is a vegetable. So you write this set of vegetables. Question number 4. List the elements of the following set. अब आपने ये जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है उनके बस बताने के इस स्टेटमेंट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. इधर आपके पास एलिमेंट गिवन थे, आपने स्टेटमेंट बताई. अब आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, आपने क्या बताने उस सेट के एलिमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 4. N is natural number numbers greater than or equal to 220. अब उन्होंने हमें कहा कि आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ग्रेटर हो और क्या हो, इक्वल हो 20 से, मतलब 20 से बड़े हो और 20 के मतलब इक्वल में 20 से आपसे स्टार्ट. जब इक्वल का वर्ड आ जाता है तो आपने ये वाला नंबर लिखना होता है. अगर यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर लिखा होता तो हम 21 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल भी लिखा हुआ है, इक्वल की वजह से हम 20 भी इंक्लूड करेंगे. ओके, देखिए ब्रैकेट लगाए, इक्वल लगा हुआ तो 20 भी लगाएंगे. ठीक है. अब उन्होंने हमें क्या किया, ग्रेटर, किससे ग्रेटर? बड़े. ग्रेटर मीन बड़े वाले लिखने हैं. किससे बड़े लिखने? 20 से. 20 से बड़े कौन से थे? 21, 22, 23. अब उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि आपने एंड कहाँ पे देना है, तो अब थोड़े से हम लिखिए आपके आगे डॉट लगा दें, फिर चलते जा रहे इनफाइनाइट सेट. ओके. Part 2 is prime numbers between 10 and 30. अब मैंने कहा कि आपने वो प्राइम नंबर्स लिखने हैं 10 और 30 के जो बिटवीन में मिलाई करें. बिटवीन में तो इनके दोनों के दरमियान मिलाई करें. प्राइम नंबर्स का मैंने भी आपको बताया है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं. एक 1 होता है, एक उसका जो भी हमने नंबर लिया होता है वो अपना टेबल खुद होता है. ठीक है.
अब आपके प्राइम नंबर्स बताने हैं किसके दरमियान, 10 और 30 के मिड में। अब उन्होंने हमें इक्वल का नहीं बताया, तो 10 और 30 वाले नंबर दोनों के दोनों नंबर्स नहीं आएंगे, बल्कि सिर्फ इसके दरमियान वाले जो प्राइम नंबर्स हैं सिर्फ वो आ जाएंगे। ओके 11 में देखिए फैक्टर 1 होता है और अपना टेबल होता है बस। 13 और कौन सा होता है, 17, 19, ठीक है। 19 के बाद 23, 27 and 29. Next is the M set given है, which is multiples of 5 and greater than 5. मल्टीपल्स का जब भी वर्ड आता है तो हमने उसका टेबल ही लिखना होता है। मल्टीपल्स ऑफ 5 का टेबल लिखना है आपने, लेकिन कहां से, ग्रेटर देन 5 से बड़ा आगे वाले नंबर्स लिखने हैं। आप इक्वल का वर्ड नहीं लिखा हुआ तो 5 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ 5 से ग्रेटर नंबर्स लिखेंगे बड़े। ब्रैकेट लगाई, 5 नहीं आएगा, 5 से बड़ा 10 आता है, 10, 55 का टेबल लिखना है, 20, 25, 30। अब हमें यही बताया कहां पे एंड करना है, तो हम continuous infinite से। Next is the primary color. Primary colors are blue, green and red only. And बस ये आप अपनी कॉपीज पे अच्छे तरीके से नीट सारा करना है, और आपको मैं कॉपीज इंशाल्लाह चेक करूंगी। एंड थैंक यू।